Okay, students. So now we are done with the process of the replication, transcription, and the translation. We have done all these processes, and this all creates the central dogma. Okay, what is that central dogma? Sometimes you get to have the question on this type of the flow chart. This is a small little flow chart that which describes the central dogma. Dogma means that is a centralized idea of a living organism on the basis of which the characters are being formed, they are being transferred, they are being given to the next generation, and hence the organism attains its characteristics, right? So what is all responsible for this? And you get to have this in the form of the blanks. Okay, ये एक तरह का क्वेश्चन आपका fill in the blanks में रहा है. So DNA when forming its own copy, ठीक है, this is the first. DNA forming its own copy. The process involved is called as replication, right? Then forming its own copy, the process involved is a replication. Then the DNA, we studied that it makes a mRNA or the tRNA or the rRNA, है ना? That are the different forms. That is depending upon the process post-transcriptional changes, the different forms of the RNA will be formed. And what is the process involved in this? That is the transcription. The process involved is transcription, which leads to the formation of the RNAs. Okay, that is the primary transcript, which is formed after transcription. Then this mRNA that transfers its information to the tRNA, then again to the rRNA, and finally this will be creating, this is giving to the rRNA, that is to the ribosomal RNA. And ribosomes are what? That are the protein synthesizing factories. So this is the process which involves the formation of the proteins. That process is called as translation. Okay. So the three major steps of this central dogma we have finished. That is, we have done the replication process, transcription process, and the translation process. What is replication? The formation of the DNA from its own strands, through the semi-conservative nature. Clear? The formation of the RNA, that may be in the form of mRNA or in the form of the tRNA. The formation of the RNAs from the DNA, the process involved is the transcription. From the RNA, the process of the formation of, this is to the rRNA when it travels and it takes, there is the formation of the proteins. You mentioned it here. On this rRNA, with the help of the ribosome, this helps to form the proteins also. Okay. So from rRNA, when there is a formation of the proteins, the process involved is the third process, that is translation. So we have done the major of these three processes along with all the steps, their sub-steps, their requirements and everything. Okay. Now coming to the next is, this is a general, you can say, process that which is going on and on in your body, because proteins are what? That is the chemicals which are required in your body. All the enzymes are proteins, but all the proteins are not the enzymes. Okay. जितनी आपकी बॉडी में एंजाइम्स चाहिए हैं आपकी वेरियस मेटाबॉलिकल रिएक्शंस के लिए, वो सारे प्रोटीन्स हैं. अब प्रोटीन्स बनाने पड़ेंगे, एंजाइम्स बनते रहते हैं हमारी बॉडी में. ये जब भी कोई नवा प्रोडक्ट बनता है, that is all done because of the expression of the genes, है ना? We have studied, हमने transcriptional unit में पढ़ा कि there are certain structural genes only which need to be coded further and hence they will be forming the primary transcript. अब उसमें जो इंट्रॉन्स आ गए, इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस आ गए, उनको हमने रिमूव करवा दिया. ठीक है, आपने वीडियो में भी देखा. तो वहां पे हमने उसको रिमूव क्यों करवाया? क्योंकि वो रिक्वायरमेंट था आरएनए एमआरएनए के स्ट्रक्चर का. कैपिंग टेलिंग करवाना पड़ा, मॉडिफिकेशंस ऑफ द अमीनो एसिड वगैरह की साइट जो है या लूप्स हैं, वो सारी चीजें बनानी पड़ी टीआरएनए के स्ट्रक्चर में. तो ये मॉडिफिकेशंस हुई, उसके बाद हमारा पर्पस फुलफिल हो गया, दैट इज फॉर अगेन प्रोटीन फॉर्मेशन. तो इतनी सारी चीजें होने के लिए भी हमें बहुत सारे एंजाइम्स चाहिए थे. यहाँ से कितने सारे एंजाइम की लिस्ट शुरू हो जाती है. तो वो सारे एंजाइम, सिर्फ एक छोटी सी चीज में मैं बात कर रही हूँ, सारे एंजाइम जो इन्वॉल्व हुए वो क्या थे? दे वर प्रोटीन्स. सो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, but all proteins are not the enzymes. They are not just the enzymes, they are many things more. Okay. So ये क्या है? यहाँ पे हमारी बॉडी में जब भी कोई एक्सप्रेस करेगा, that will be a set of genes. एक्सप्रेशन आता है जीन्स का. Depending upon that, this is what we call it as a gene expression.
ठीक है, यहाँ पे हमने सेट ऑफ जीन्स की ही सिर्फ बात करी थी। हमने बोला इंट्रॉन्स निकाल दो, एक्सॉन्स को जोड़ दो, क्योंकि प्रोटीन बनाना है, इंट्रॉन्स का अंदर कोई काम नहीं है। तो ये क्या किया, जीन वही रखा जिसने आगे एक्सप्रेस करना था। तो जीन एक्सप्रेशन के टाइम पे क्या होता है, दिस इज द फिनोमेना, दिस इज एक्चुअली व्हाट इज दिस whole process called as, that is the expression of the gene or the gene expression. In this gene expression, we will be studying for the two of the genes. Firstly, there are two types of the genes. दो तरह की genes express करती है हमारी बॉडी में। एक तो जो करती ही रहती है, मतलब all through the cells, all through the day, मतलब उन्होंने बनते बिगड़ते रहना है। कैटाबॉलिक मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो है, एनाबॉलिक रिएक्शंस जो है, वो चलती रहती है उनके लिए। So they are all called as a type of genes called as housekeeping genes. What are these called as? Housekeeping genes. The housekeeping genes, they are also called as the constitutive genes. And another one that are called as the regulated genes. Housekeeping genes कौन सी हैं या constitutive लिख लो. This is constitutive. The constitutive genes or the housekeeping genes are those which are going to express themselves continuously. Continuously for all the cells, for all the, you can say, time, they keep on expressing themselves. ठीक है, जैसे प्रोसेसेस है हमारे, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है। अब ग्लाइकोलिसिस में क्या है, देयर इज ऑलवेज व्हेन यू आर टेकिंग इन द फूड देन इट हैज टू बी ब्रोकन डाउन, है ना, आपने पढ़ा था 11th में पढ़ा था। ग्लाइकोलिसिस में क्या है, वो पायरुवेट पे जाएगा, पायरुवेट से क्रेब्स साइकिल एंटर करेगा, तो वहां वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाएगा। तो ये चीज तो बनती रहनी है, पूरा दिन बननी है हमारी बॉडी। तो ये अपने आप को एक्सप्रेशन देती ही रहती हैं, इनका एक्सप्रेशन चलता ही रहता है ऑल थ्रू द सेल्स, मतलब सारे सेल्स में से, एंड ऑल थ्रू द डे। ठीक है, पर ये कुछ ऐसी जीन्स हैं रेगुलेटेड वाली जिनको रेगुलेट किया जा रहा है। रेगुलेट मतलब ऑन ऑफ किया जा रहा है। जब जरूरत है तब इनका एक्सप्रेशन ले लो, और जब नहीं जरूरत है तो इनका एक्सप्रेशन काट दो, मतलब खत्म कर दो, रोक दो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, बिल्कुल ही खत्म नहीं कर देना, थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दो, pause कर देना, we can see. Okay, so that is the regulated genes. The genes which are regulated depending upon the requirement, which are regulated or switched on depending upon their requirement, only those genes they are called as the regulated genes. How are they being regulated now? मतलब उनको switch on और off कैसे करना है, इसमें आपने सिर्फ एक ही एग्जाम्पल पढ़नी है, मतलब आपने एक ही प्रोसेस पढ़ना है as according to your CBSE NCERT books. So that is the only one, lac operon, right? So we are to study here the regulated gene, that of the inducible type. This is, हमने एक system पढ़ना है, operon system पढ़ना है, which we call it as inducible type. This is the only one, and this is very very important. You can say gene expression question. ठीक है, ये बहुत बार आता है, हमेशा आता है. This is the inducible operon system. And here what we have to study from this, it is the lac operon. Lac, that stands for the lactose. ठीक है, so हमने यहाँ पे जो पढ़ना है, that is only one system of regulation, that is gene regulation का सिर्फ एक ही system पढ़ना है, and that is lac operon. ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे थोड़ी देर पहले बोला था कि जीन्स ने एक्सप्रेस करना है और वो ऑन एंड ऑफ होती है। जो जीन्स एक्सप्रेस करती है अपने आप को, जो जीन्स अपना एक्सप्रेशन आगे देती हैं, यानी कि चेंज लेके आती हैं, उन जीन्स को हम क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल दोस जीन्स दैट व्हिच आर एक्सप्रेसिव? एनीवन? व्हाट डू वी कॉल दोस जीन्स दैट व्हिच एक्सप्रेसेस देमसेल्व्स? दे आर कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल जीन्स। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल जीन्स जिन्होंने आगे अपना एक्सप्रेशन देना है, वो वहां तक पहुंचने के लिए, मतलब उसका एक्सप्रेशन शुरुआत करवाने के लिए हमें और बहुत सारे जीन्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जैसे ट्रांसक्रिप्शन में आपने पढ़ा था, देयर इज अ टर्मिनेटर जोन, देयर इज अ प्रोमोटर जोन बिफोर एंड आफ्टर द स्ट्रक्चरल जीन, ऐसा ही यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एक स्ट्रक्चरल जीन्स हैं। सबसे पहले लेट्स से दिस इज ऑल द स्ट्रक्चरल जीन्स लोकेशन ऑन द DNA. Okay, these are structural genes. There are 3 structural genes in this lac operon, that is the Z, Y and A. Lac, Z, LAC, Z अलग है, ठीक है, lac
Y and lac A. Lac Z, Y and A. The expression of this will be operator, है ना, जो एक्सप्रेशन होगा इन तीनों का, क्योंकि मैंने क्या बोला है, दिस इज फॉर जीन एक्सप्रेशन, राइट. वी आर हेयर, वी आर स्टडिंग व्हाट, वी आर स्टडिंग द expression of the gene and those also for the regulated genes only. ठीक है, so what we are studying here is the expression of the regulated genes. इनका एक्सप्रेशन कैसे होगा, इनको एक्सप्रेस करने के लिए इनको अपना आगे जो रिजल्टेंट है, जो भी इन्होंने जो भी जीन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल, मतलब जो भी करेक्टर के लिए चेंजेस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल हैं, वो चेंजेस देने से पहले इनको अपने आप को ऑन करवाना पड़ेगा. रेगुलेट करे हुई है ना, ये ऑन एंड ऑफ में है, तो इनको ऑन करवाने के लिए देयर इज अ जीन विच इज कॉल्ड एज ऑपरेटर जीन. सो दिस इज द ऑपरेटर जीन ओ, राइट. ऑपरेटर जीन की एक खासियत है यहाँ पे कि जो ऑपरेटर जीन है, दिस इज फॉर द स्विच्ड ऑफ पोजीशन. ऑफ जब तक पोजीशन है तब तक के लिए दीज आर स्विच्ड ऑफ विद द हेल्प ऑफ अ रिप्रेसर. समझ गए, ये ऑपरेटर जीन है. ऑपरेटर जीन के साथ यहाँ प्रमोटर लगा हुआ है. प्रमोटर ने ऑपरेटर को स्टार्ट करना है और वहां से ये आगे स्ट्रक्चर जीन की तरह रन हो जाएगा, सारा रीडिंग हो जाएगा, एक्सप्रेशन आ जाएगा. ठीक है, लेकिन ऑपरेटर जीन जो है, मैंने बताया अभी, ये ब्लॉक हो जाती है, ये स्विच ऑफ हो जाती है बिकॉज ऑफ द रिप्रेसर विच इज हैविंग द टू ऑफ द साइड्स. ठीक है, ये एक रिप्रेसर है जो कि सिंथेसाइज किया है रिप्रेसिबल जीन ने. यहाँ पे इसकी आई जीन है. ठीक है, दिस इज एन आई जीन एंड दिस इज द गोइंग टू क्रिएट अ रिप्रेसर. सो दिस इज रिप्रेसिबल जीन और रिप्रेसर जीन. This one is promoter gene and this O is operator gene. ठीक है जी. So this I gene यानी repressor gene, जो repressible gene है, this creates an mRNA. ये इस तरह से एक mRNA secrete करेगा, मतलब secrete नहीं, produce करेगा, synthesize करेगा. ये mRNA ने आगे एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया जिसके दो साइड्स हैं. वन इज इट इज हैविंग द हेड, अनदर इट इज हैविंग द ग्रूव, लाइक दिस. ओके, सो दिस इज द रिप्रेसर. ये एक रिप्रेसर है जो कि सिंथेसाइज हुआ है आईजीन. ये रिप्रेसर क्या करेगा, इस रिप्रेसर ने जाके ऑपरेटर के साथ चिपक जाना तब तक के लिए जब तक के लिए स्विच ऑफ पोजीशन पे है, यानी तब तक के लिए जब तक ये स्ट्रक्चरल जीन्स को इनका आगे फंक्शन नहीं चाहिए, मतलब इनको एक्सप्रेशन नहीं चाहिए. समझ गए, तब तक के लिए रिप्रेसर जीन जो है इसने ब्लॉक कर दिया, हाइड करवा दिया इस ऑपरेटर जीन को. प्रोमोटर के आगे ऑपरेटर नहीं होगा तो आगे इसके भी आगे इसका ऑपरेशन नहीं होगा, यानी ये आगे ऑपरेट नहीं होंगे, अपना एक्सप्रेशन नहीं देंगे. ठीक है, अब ये जो इसके दो पार्ट्स, दो साइड्स मैंने बोली है यहाँ पे, वन इज द हेड रीजन. द हेड इज टू अटैच और टू यू कैन से hide the operator gene, that is to lead it to its dysfunctioning. ठीक है, हेड जब इसके साथ जुड़ा है, ऑपरेटर जीन के साथ जुड़ा है, तब तक के लिए ऑपरेटर का फंक्शन नहीं चलेगा. ठीक है, दूसरा हमने बनाया है यहाँ पे ये ग्रूव. अब ये ग्रूव किसके लिए है, दैट इज फॉर इट्स अटैचमेंट विद द इंड्यूसर. अभी मैंने यहाँ वर्ड लिखा है इंड्यूसिबल. इंड्यूसिबल मतलब ये इसको इंड्यूस किया जा रहा है सिस्टम को एक्सप्रेशन दे या ना. तो इंड्यूस मतलब आपने खुद करवाना है, खुद मतलब आपने नहीं, आपकी बॉडी सिस्टम ने खुद करवाना है. कैसे करवाएंगे, दैट इज व्हेन, दिस इज व्हेन द रिप्रेसर जीन, ये वाला है ऊपर, इसको एरो कर दो, और ये जो ग्रूव में है यहाँ मैंने एक ओवल स्ट्रक्चर बनाया है जस्ट शोइंग द इंड्यूसर. एंड व्हाट इज द इंड्यूसर हियर, दैट इज द लैक्टोज. द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लैक्टोज दैट एक्ट्स एज एन इंड्यूसर. This is the inducer which is lactose. Lactose inducer अगर present है in the presence of the inducer. पहले क्या है देखो, सबसे पहले क्या था, ये एक normalized structure है. ठीक है, पहले inducer को छोड़ दो, पहले inducer को छोड़ दो, बाकी IPO genes हैं जिन्होंने इन ZYA genes को रेगुलेट करना है. ठीक है, जब ये सिंपल में पढ़े हैं तब तक ये नहीं आया, लैक्टोज नहीं आया.
ठीक है, तब तक के लिए ये स्विच ऑफ पोजीशन पे है, स्विच ऑफ है, ये एक्सप्रेशन नहीं दे रहे, यहाँ कोई एमआरएनए सिंथेसाइज नहीं हो रहा है इनसे, स्ट्रक्चरल जीन साइलेंट है। ठीक है, अब इसके बाद क्यों साइलेंट थी वो? क्योंकि इसने अपना एक प्रोडक्ट बना के ऑपरेटर के ऊपर डाल रखा है, ऑपरेटर काम नहीं कर रहा, राइट। जब इनकी जरूरत पड़ी, जब इनके एंजाइम्स जो इन्होंने आगे, जैसे बीटा ग्लाइकोसाइडेज है, फॉर्मीज है, ट्रांसएसिटाइलेज है, इन्होंने आगे सिक्रीट करने हैं, इन्होंने प्रोड्यूस करने हैं वो वाले सारे एंजाइम्स जो बनाने, सिक्रीट नहीं प्रोड्यूस करने। सो जब इन्होंने सिंथेसाइज करने हैं, प्रोड्यूस करने में सारे एंजाइम्स, तो उस टाइम पे इनका एक्सप्रेशन ऑन करने के लिए इंड्यूसर्स वहां पे आएंगे। वो क्या करेंगे? इंड्यूसर्स आर द लैक्टोज मॉलिक्यूल्स फॉर दिस ऑपरेंट सिस्टम। ठीक है, ये आए, इन्होंने जाके बाइंडिंग करी इसकी ग्रुप पार्ट, रिप्रेसर की ग्रुप पार्ट पे बाइंडिंग करी। दिस बाइंडिंग इज मोर फर्म, मतलब ज्यादा टाइट है, ज्यादा अच्छी बाइंडिंग है, ये अच्छी फिक्स्ड बाइंडिंग है। When this binding takes place, the lactose binded with the repressor that removes this complex. ठीक है, ये two together will be removed out, right? So ये दोनों यहाँ से हट जाएंगे जब ये इंड्यूसर आके लग गया इसको। ये इसने क्या करना है? अपने रिप्रेसर को और साथ में इंड्यूसर का ये वाला मॉलिक्यूल, इसलिए क्या किया? रिप्रेसर को अलग कर दिया ना अलग। अब जब अलग हो गया, now the operator is free. The operator will be free. This I am making now dotted one because it has been removed. You can also show it as this way. क्योंकि पहले ये था वहां पे फंक्शनिंग कर रहा था, पहले स्विच ऑफ पोजीशन में, अब स्विच ऑन कर दिया। जब ये रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पे कंडीशन कौन सी लग रही है हमारी? स्विच ऑन। And when we put on the switch, then the lights and the fans they start working. So this is when the switch is on, the structural genes will start working. ठीक है, how they will work, this we will study. And this was when the operator was hidden because of repressor. This position was an off position. समझ गए? ऑन एंड ऑफ क्या है? ऑफ तब तक जब तक इंड्यूसर नहीं है, और जब इंड्यूसर आ गया तब इसमें जाके इसने क्या किया? इंड्यूसर ने उस रिप्रेसर को हटा दिया और पोजीशन कर दिया ऑन। ठीक है, क्लियर? Now further what will happen is there is again an enzyme which is enzyme complex that is required for the functioning, for the expression of this. That enzyme is RNA polymerase. The enzyme RNA polymerase will be having its attachment site on the promoter. इसकी अटैचमेंट साइट कहाँ पे है? प्रोमोटर के ऊपर। प्रोमोटर के ऊपर दो साइट्स हैं फिर से, प्रोमोटर के ऊपर, ऑपरेटर के ऊपर तो अलग थी रिप्रेसर की साइट्स। ठीक है, अब प्रोमोटर के ऊपर दो साइट्स हैं, एक है CAMP की, CAMP दैट विच सप्लाइज द एनर्जी। ठीक है, CAMP। एंड जब ये CAMP जाके इसके साथ बाइंड कर जाता है तो पता चल जाता है कि दिस इज नाउ एक्टिवेटेड, एनर्जी आ गया, एक्टिवेट हो गया, एंड हेंस द RNA polymerase complex goes and attaches to the this promoter zone। ठीक है, प्रोमोटर जोन पे आके ये रुका हुआ है तब तक के लिए जब तक रिप्रेसर नहीं हटता। जैसे ही रिप्रेसर हटा इंड्यूसर से, ये क्या करेगा? RNA polymerase complex, जैसे आपने वीडियो में देखा था, that runs along the length of the DNA, है ना? So when it is going and running along the length of the DNA, it will come across these structural genes which are further going to express themselves, and these all three will be producing out their mRNA strands. These will be the, let's say, mRNA strands that which are produced by these structural genes, and these mRNA strands, they are going to express, creating their specialized, creating the specialized genes, creating the specialized proteins। ठीक है, अब ये proteins कौन कौन सी हैं? Z is responsible for the formation of beta galactosidase, beta galactosidase. Y is responsible for the formation of an enzyme permease, and the expression of this A gene leads to the formation of the transacetylase. This is transacetylase, right? Their expression has been regulated. It has been controlled. How it has been controlled? That is because of the inducer. Now when again they are to be stopped,
अभी इनका रिक्वायरमेंट जितना चाहिए था, जितनी बननी चाहिए थी, ये एंजाइम बन गई, ठीक है, अब यूटिलाइज होंगी, टिल देन दे नीड टू बी स्टॉप्ड, क्योंकि ये रेगुलेटेड है ना, जीन एक्सप्रेशन रेगुलेटेड जीन्स का है, तो इनको रोकना पड़ेगा। और जब इनको रोकना है, जब इनको स्टॉप करना है, फिर से क्या होगा, ये इंड्यूसर इस कम्प्लेक्स से हट जाएगा, repressor is again that is free, right? The repressors or these repressors which are again synthesized by the repressible genes, ये जो repressor genes हैं, they are going to synthesize more of these repressors leading to the absence of lactose, क्योंकि lactose की absence हो चुकी है, ये वाले regulators जो हैं दोबारा फिर से on से off position पे आ जाएंगे, क्योंकि अब lactose का absence हो गया। जब lactose पूरी तरह से अपना खत्म हो गया है, अभी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, फिर दोबारा एक नवा रिप्रेसर मॉलिक्यूल जो है वो सिंथेसाइज होंगे एंड दे विल बी अगेन गोइंग एंड हाइडिंग द ऑपरेटर जीन। आरएनए पॉलीमरेज तब तक स्टॉप पे पड़ा रहेगा जब तक ये ढका हुआ है, जब तक ऑपरेटर जीन जो है एक्सप्रेसिबल नहीं, ठीक है। So hence this process of on and off that keeps on working. So this is the on position when inducer is there. This is the off position when the inducer is binded with the when the inducer is absent. Okay, that is an off position. When the inducer comes, that is an on position. It takes off the repressor from the operator. Clear? Anybody having any question till this? Coming to the next, that is the Human Genome Project. In short, this is called as HGP. Human Genome Project. Actually, this was when the genetics field, like we are studying for the genetics ना, हमने molecular basis पे शुरू किया। हमने बोला कि सबसे पहले तो यही एक चैलेंज था कि डीएनए, पहले तो यही चैलेंज था कि आगे जनरेशन से जाता गया, ठीक है। फिर पता चला कि देयर इज समथिंग दैट व्हिच इज गोइंग इनटू द नेक्स्ट जनरेशन एंड दैट माइट बी समथिंग लाइक इट्स कंपोनेंट्स में से कुछ होगा, बायोकेमिकल नेचर देखा तो डीएनए पता चला, डीएनए पता चला तो उसके लिए एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किए गए, वो प्रूफ आए हमारे पास, फिर आया डीएनए रेप्लिकेट कैसे करता है, ट्रांसक्राइब कैसे करता है, ट्रांसलेट कैसे करता है, एंड ऑल द स्टोरीज ऑफ द डीएनए। दिस इज द डीएनए's you can say the field of the genetics and the DNA study that was making out to be more and more common to all the people, all the biologists, those who were concerned with these, ठीक है। फिर उसके बाद जब हमारे पास और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज एनहांस हो गई, बहुत सारा कुछ हमें पता चलना शुरू हो गया अबाउट द डीएनए एंड द जीन्स एंड एवरीथिंग, तो हमारे जो लोग थे उनके माइंड में आया कि अगर हमें ह्यूमन में अगर उसके अंदर कोई चेंजेस करनी हो, क्योंकि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज एडवांस हो रही थी, अगर कोई जीन हमें पता हो तो हम उसके ऊपर उसके चेंजेस कर सकते हैं। अगर हमें इसके बारे में पता हो कि ह्यूमन के अंदर कितने के जीन्स हैं, क्योंकि आप हर करेक्टर को पढ़ते हो, आपने करेक्टर को पढ़ा तो क्या किया, एक करेक्टर है उसके लिए अलील्स हैं और बहुत सारी वेरिएशंस आती है, स्किन टोन है सिंपल सा, ठीक है, एक स्किन कलर सिंपल सी बात है, लेकिन अगर हम पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन में देखें तो वी हैव वास्ट नंबर ऑफ इट्स वेराइटीज ऑफ अ सिंगल करेक्टर। तो ये इतने एक सिंगल करेक्टर की इतनी वेराइटीज क्यों पॉसिबल हो पाई और क्या क्या जीन्स रिस्पॉन्सिबल है इनके लिए, अगर हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन हो तो वी कैन with the help of the technologies we can just go at any limits to this, है ना, for this particular human genome में हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, ये माना गया लोगों से। अब लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंज बन गया just to you can say find out the genome, to study the genome, to find out its various features, ठीक है, and also it was a big challenge because ये छोटा काम नहीं था, बहुत साल लगा के होने वाला काम था, approximate इसे माना गया था कि it will be approximately taking 13 years to complete this particular HGP। पूरा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए अप्रोक्सीमेट आइडेंटिफाइड था कि 13 साल लगने वाले हैं इसको सारे को करने के लिए, सारी जीन्स पढ़नी थी। और बिगेस्ट चैलेंज क्या था कि आज आपने 2 जीन्स 10 जीन्स 20 जीन्स पढ़ ली, उनकी लोकेशन पढ़ ली, उनकी एक्सप्रेशन पढ़ ली, पर कल दोबारा फिर से आप ही उसको कंटिन्यू करोगे कि नहीं, कोई और कंटिन्यू करेगा, या आप कितनी आगे तक इसको रिकॉल रिमाइंड रख सकते हो अपने मेमोरी के अंदर, कितनी देर आप इसको रख सकते हो, वो सबसे बड़ा चैलेंज था। वहां पे हेल्प लिया गया कंप्यूटर्स का, कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज का। तो कंप्यूटर्स की जब भी हेल्प ली गई और डाटा स्टोर करके रखना, दैट वाज अ बिगेस्ट चैलेंज, दैट इज व्हाट इट मेड इट द मेगा प्रोजेक्ट। ये क्वेश्चन आता है आपको, व्हाट मेड द HGP अ मेगा प्रोजेक्ट, व्हाट मेड HGP or why do we call it as a mega project?
There are several of the points. For what reasons do we call it as a mega project? Because number one, सबसे पहला यही जो मैं अभी बोल रही हूँ, स्टोरेज ऑफ द डाटा. जो स्टोरेज है डाटा का वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था और इसको कंपाइल करके रख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि अगर ये माना गया कि अगर इसको स्टोर करा जाए इन द फॉर्म ऑफ द प्रिंटेड पेजेस, ठीक है, प्रिंट्स में यानी बुक्स इसकी बनवाई जाए, तो इट वाज अप्रोक्सीमेटली इट वाज थॉट कि इसकी नियरली 3300 बुक्स लगेगी. 3300 बुक्स हमें मेंटेन करके रखनी पड़ेगी इस पूरे डाटा के लिए. ईच बुक हैविंग 1000 पेजेस, हर बुक के ऊपर 1000 पेजेस होने चाहिए और हर पेज के ऊपर 1000 टाइप्ड लेटर्स प्रोवाइड होने चाहिए, तो हमारा ये डाटा सारा स्टोर हो सकता है. एंड इज इट पॉसिबल? There were supposed to be 3300 books to be maintained for this. पहले तो इतनी बुक्स और हर बुक के अंदर 1000 पेजेस, हर पेज के ऊपर 1000 टाइप्ड लेटर्स. इतना ज्यादा डाटा कोई रखता और उसके बाद उसको एनालाइज क्या करता, ये सबसे बड़ा एक चैलेंज था. एंड बिकॉज ऑफ दिस ओनली दे टुक द यू कैन से दिस वाज accomplished with the help of the computer technologies. And second challenge, it was highly you can say financial conditions बहुत ज़्यादा good चाहिए थी इसमें, and that was a huge amount was required for this particular project, and this huge amount was thought to be in billions somewhere. This was approximately in billions. Okay, what made it a mega project? This was a huge amount which is cost estimated, you can write, that was approximately in billions, in $billion, not rupees. Okay, it was in $billion, $9 billion, approximately $9 billion was the amount, right? Then there was a large number of the base pairs were to be kept here, that were to be identified, that were to be sequenced. Okay, so very large number of base pairs were to be sequenced. पूरा sentence लिख दो. That were to be identified, then to be sequenced, and that was approximately 3 into 10 raised to power 9 base pairs. These many base pairs were to be identified, checked, located, and then sequenced. Okay, अब ये सारा काम करने के लिए देखो हमें सपोर्टिंग स्टाफ चाहिए है फॉर स्टोरिंग द डाटा, हमें प्रॉपर इसकी अमाउंट चाहिए है और पूरा कैलकुलेटर के लिए हमें बहुत सारे लोग चाहिए, फिर हमें टेक्नीशियंस चाहिए कंप्यूटर को चलाने के लिए, सही करके रखने के लिए, हर चीज करने के लिए, हमें साइंटिस्ट लोग चाहिए हैं इन सब के लिए. सो वी रिक्वायर्ड अ गुड मैन पावर, राइट? मैन पावर, एक बहुत वैरायटी ऑफ मैन पावर चाहिए थी इसमें. दैट वाज आल्सो number of people were associated in this project, that is all the computer assistants, the technicians, the scientists, then staff members, है ना, कुछ ऐसे मतलब हर तरह के लोगों को इसमें फिट कर दिया गया इस प्रोजेक्ट के अंदर, और बहुत सारे लोगों की मदद से ये पॉसिबली जो ये प्रोजेक्ट है दैट इज द HDP प्रोजेक्ट है. दिस वाज कंप्लीटेड ऑन June 26, 2000, right? So this project was completed on June 26, 2000, and hence this was the biggest achievement for the humans also. After studying it, after storing it, after getting the whole data, this was the biggest achievement, right? Further about the Human Genome Project, we will be doing it tomorrow. Anything you want to ask? Yes.